Good morning, students. Welcome. Students, this is the second part of chapter 8, Cell Structure and Functions of your science book. Let's first recall that what we read in the last class. In the first part, we read about cell, what is cell, and we also came to know who discovered cell. Robert Hooke in 1665 discovered the term cell. He coined the term cell by observing a thin slice of cork under a simple microscope, and he saw that boxes or compartment appeared while he was observing a cork slice under a microscope, and he termed those boxes as cell. Then we also read about that organisms show variety among themselves based on the number of cells present in them. Although in this part we are going to read about that they differ in shape and size also. In the last part we read about how they differ among themselves based on number of cells present in them. We read that there are multicellular organism and unicellular organism. What are multicellular organisms? Those are made of more than one cell. These are called multicellular organism, and the organism which are just made of one cell, single cell, those organisms are called unicellular organisms. So we also read about the examples like amoeba and paramecium. These are unicellular organisms. So let us read today's part. We have to read from here. Shape of cells. In the last part we have covered till here. Let's read. Let's start today's part. Refer to figure 8.3a. How do you find the shape of amoeba in the figure? As we saw just right now, shape of amoeba, we saw that you may say that the shape of amoeba appears irregular. In fact, amoeba has no fixed shape, no definite shape, unlike other organisms. It keeps on changing its shape. What we saw just right now, we saw that हमने देखा कि अमीबा की शेप कैसी होती है. इट हैज़ इरेगुलर शेप, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती. बाकी जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स शेप होती है, देख के पता चल सकता है, बट अमीबा की नहीं होती. वो अपनी शेप को चेंज करते रहता है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेराइंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. These are called pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. As you learnt in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. Class 7 में आपने पढ़ा था कि जो अमीबा के प्रोजेक्शंस निकलते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया. ये है प्रोजेक्शन. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ उसकी, अमीबा की सूडोपोडिया की. ये अमीबा का पिक्चर है. सूडोपोडिया क्या है? ये जो फॉल्स फीट दिख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हमें दिख रहे हैं, या ये सब क्या है? ये प्रोजेक्शंस जो हमको नज़र आ रहे हैं आउट ऑफ मीन्स इसकी बॉडी से जो निकल रहे हैं अमीबा की, इसे बोलते हैं सूडोपोडिया. सूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट. क्लास 7 में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये अपीयर होते हैं एंड देन डिसअपीयर हो जाते हैं जब अमीबा मूव करता है या फिर खाना खाता है, मीन्स फूड अपने अंदर लेता है. ये सब हमने 7th क्लास में कवर किया था, आपने पढ़ा था. लेट्स सी व्हाट इज़ पहेली सेइंग ओवर है. व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप. क्या एडवांटेज होता है अमीबा को अपनी शेप चेंज करने से? बूझो आंसर्स. द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड. तो बूझो बताता है कि जो हम चेंज इन शेप देख पाते हैं, शेप में जो चेंज करता है अमीबा अपनी, ये होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. जब सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और वो तब होता है जब अमीबा मूव करता है फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, या फिर खाने को कैप्चर करने के लिए, फूड को अपने अंदर कैप्चर करने के लिए वो अपनी शेप को चेंज करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपल अमीबा हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं. उसके बाद उसने अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करी जब उसको खाना नज़र आया. उसके जो प्रोजेक्शंस हैं ये सूडोपोडिया हमें दिखाई दिए. आफ्टर दैट इसने थोड़ी देर बाद अपने शेप को और चेंज करते हुए खाने को अपने अंदर ले लिया, इस खाने को अपने अंदर ले लिया, कैप्चर कर लिया. तो इस वजह से ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है अमीबा. नेक्स्ट पैराग्राफ. White blood cell WBC in human beings, in human blood
इस अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। जो WBC हमारी बॉडी में पाए जाते हैं सिंगल सेल ही होता है, विच कैन चेंज इट्स शेप, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप। WBC भी चेंज कर सकते हैं शेप, बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट द डिफरेंस इज WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, वो सेल होता है, सिंगल होता है, भले एक सिंगल सेल से बना है बट वो इट इज़ एक्चुअली अ सेल। बट व्हाट इज़ अमीबा, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है जो कि केवल एक सेल से बना हुआ है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन WBC एंड अमीबा। What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle, nerve of the human being. Different shapes are related to their specific functions. So as you can see the figure down, ये ब्लड सेल है ह्यूमन बींग्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, ये मसल सेल है स्पिंडल शेप का होता है, और ये नर्व सेल है। सो क्या शेप होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म के हिसाब से? क्या मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो क्या शेप होनी चाहिए? तो ये हम फिगर्स देख के पता चल सकता है कि सबकी शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती है, सबका शेप एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सबकी जो शेप होती है उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से दी जाती है, सबकी शेप उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के हिसाब से होती है। Generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. ज़्यादातर सेल्स होते हैं राउंड शेप के, जैसे ये है ब्लड सेल है, ज़्यादातर सेल होते हैं राउंड शेप के। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं एट बोथ द एंड्स, जैसे कि ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप के जो मसल सेल्स हैं ये कैसे हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, इनको बोला जाता है स्पिंडल शेप। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल और अ न्यूरॉन, कुछ इस तरीके से ब्रांच्ड रहते हैं, इस तरीके से ब्रांच रहते हैं, जैसे कि एक नर्व सेल है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स द मैसेजेस। नर्व सेल का काम क्या होता है, नर्व सेल प्रेजेंट रहता है ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में जो होता है नर्व सेल, नर्वस सिस्टम इस सेल का बना रहता है। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स द मैसेजेस, नर्व सेल रिसीव करता है मैसेज एंड देन ट्रांसफ़र करता है मैसेज, हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ताकि जब हम रिसीव करेंगे सिग्नल, जब हम मैसेज पढ़ रहे हैं, हमारी ब्रेन ने, हमारे नर्व सेल ने रिसीव किया उस सिग्नल को एंड देन इंस्ट्रक्ट किया पूरी बॉडी को कि ये काम करना है अब, तो इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बैठता है पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। Can you guess which part of the cell give its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides the shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives the shape and the rigidity to these cells. Bacterial cells also has a cell wall. तो हमसे पूछा है ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ऐसे कौन सी चीज़ है बॉडी में ऑर्गेनिज्म की जो कि उस सेल को शेप देती है। जैसे सेल हम राउंड शेप का भी देख सकते हैं, स्पिंडल शेप का भी देख सकते हैं, लंबा देख सकते हैं, स्मॉल देख सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट देख सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है शेप देना? तो कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर। जो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये किसके अंदर इंक्लोज रहते हैं? ये एक आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये सेल है, ये किसके अंदर बंद है? ये मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। ये इसकी कवरिंग क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। वन मोर थिंग दैट मेम्ब्रेन को भी कौन सी चीज़ शेप प्रोवाइड करती है? यहाँ पे जैसे अंडरलाइन करा है हमने, वापस से बताती हूँ। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये मेम्ब्रेन क्या करता है? शेप देता है सेल को। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये अंदर इसका जो भी पार्ट अवेलेबल है, मेम्ब्रेन इसको प्रोवाइड कर रहा है शेप सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन हमें दिख रहा है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी, एक और कवरिंग है ये मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर हो गया सेल का पूरा पार्ट। और ये जो ऊपर की जो आउटर कवरिंग है जो कि मेम्ब्रेन के भी ऊपर है,
मेम्ब्रेन वाली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोला जाता है इसे? सेल वॉल। इट गिव्स द शेप। सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप देना सेल को और रिजिडिटी देना। रिजिडिटी मीन हार्डनेस, टफनेस, ये रिजिड बनाना, अपनी शेप पूरी तरीके से देना। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहती है, ताकि उसके सेल को शेप मिल पाए और रिजिडिटी मिल पाए। नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल्स। सेल की साइज। Size of cells in living organism may be as small as the millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as a few centimeters. सेल की साइज़ है तो काफ़ी छोटी हो सकती है। मीटर का मिलियंथ पार्ट ले लीजिए, माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, इतनी छोटी हो सकती है, या फिर कुछ सेंटीमीटर्स तक भी हो सकती है, इतनी लार्ज भी हो सकती है कि कुछ सेंटीमीटर्स तक बड़ी हो। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. Smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. Largest cell measuring 170 mm to into 130 mm is the egg of an ostrich. तो बोला गया है ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि हम सिंपली आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है या फिर माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है देखने के लिए। सबसे स्मॉलेस्ट सेल की साइज़ क्या हो सकती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल की साइज़ हो सकती है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट सेल की साइज़ क्या हो सकती है? 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, जैसे कि ऑस्ट्रिच के एग की इतनी साइज़ होती है। सबसे लार्जेस्ट एग किसका है? लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच के एग का। इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक्टिविटी 8.2 बॉयल अ हेन्स एग। एक हेन के जो एग है उसको हम बॉईल करेंगे। रिमूव द शेल, उसकी आउटर जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ वाइट मटीरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। जब हम बॉईल करते हैं तो क्या क्या नज़र आता है? हम उसको ऊपर की शेल हम उसकी उतारते हैं ताकि हमको क्या दिखता है? ऊपर से वाइट कलर का पार्ट दिखता है। वाइट के अंदर जब कट करते हैं तो हमको येलो पार्ट दिखता है। तो वाइट पार्ट क्या होता है? वाइट मटीरियल्स एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। येलो पार्ट इज़ द योक। वाइट पार्ट क्या होता है एग में? दैट इज़ एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और येलो पार्ट को बोलते हैं योक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। ये पूरा एग क्या होता है? ये एक सिंगल सेल होता है। यू मे ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिन्हें हमें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती, जैसे कि हैन के एग को हम देख सकते हैं, सिंगल सेल का बना रहता है, हमको किसी भी माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड नहीं होती इसे देखने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पहली सिंग ओवर है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। जैसे कि एलिफेंट की साइज़ बहुत बड़ी होती है, सेल उस कंपैरेटिवली उसके सामने रैट की साइज़ काफ़ी छोटी होती है। तो क्या एलिफेंट में जो सेल्स पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रैट्स? लेट्स रीड। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। तो क्या बताते हैं हमको कि साइज़ अगर एलिफेंट है, जिराफ है, या कोई भी ऐसा एनिमल है, और उस ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा एनिमल है जो काफ़ी छोटा है, तो रिलेशन नहीं होता कि अगर एनिमल बड़ा है तो उसका सेल का साइज़ भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल दैट एनिमल की साइज़ बड़ी है बट उसके सेल की साइज़ छोटी है, ओके, एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होता साइज़ ऑफ एनिमल और साइज़ ऑफ सेल से। इट कैन बी स्मॉल और इट कैन बी लार्ज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट में जो सेल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी बड़े हों एज़ कम्पेयर टू द सेल्स फाउंड इन अ रैट। द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस। साइज़ होता है सेल का ये अपने फंक्शंस से रिलेटेड रहता है, मीन्स जो फंक्शन उसे परफॉर्म करना है उसका शेप और साइज़ उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जो नर्व सेल होता है भले ही वो एलिफेंट में हो नर्व सेल या फिर रैट में हो, दोनों ही में ही कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा रहता है और ब्रांच्ड रहता है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। एलिफेंट में भी क्या काम करता है नर्व सेल?
मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द सिमिलर फंक्शन इज कैरिड आउट इन रैट। क्या काम करता है नर्व सेल? मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। हमने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। You have studied in class 7th about digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions as digestion, assimilation and absorption. तो हमने एक लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब आप 7th क्लास में थे, आप लोगों ने पढ़ा था कि हर एक सेल का अपना खुद का, हर एक ऑर्गन का अपना एक खुद का फंक्शन रहता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये पूरा ऑर्गन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उनके खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स का काम होता है डाइजेशन करने का, एंड देन कुछ का एसिमिलेट करने का फूड को, और अब्जॉर्प्शन करने का। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स of a plant perform specific specialized function. Similar cases found in plants. Plants में भी similar ही केस हो रहता है, similar condition होती है कि different जो groups of organs होते हैं plants में, वो अपने अपने specialized specific functions को perform करते हैं। For example roots का काम क्या होता है? पानी को absorb करना, सॉइल में से वाटर या मिनरल को अब्जॉर्ब करना। रूट्स हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। रूट्स का काम होता है पानी को अब्जॉर्ब करना एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना सॉइल से। ऑन द अदर हैंड लीव्स का काम हमने ये भी पढ़ा था 7th क्लास में कि क्या रिस्पॉन्सिबल होती है। लीव्स होती है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट और सिंथेसाइज करती हैं फूड को। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। हर एक ऑर्गन भी किससे बना रहता है? छोटे छोटे पार्ट से, जिसे बोला जाता है टिश्यू। ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन किसके बना हुआ है? छोटे छोटे पार्ट से। इसे क्या बोला जाता है? इन छोटे पार्ट्स को टिश्यूज़। इधर से आप अंडरलाइन करेंगे अपनी अपनी बुक्स में। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये पूरा आपको अंडरलाइन करना है। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये सेल है, इसका जब ग्रुप बनता है, सेल्स का जो ग्रुप बनता है, इनके ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू। इस सेल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू। टिश्यू एक्चुअली क्या होता है? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जब पाए जाते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स को इकट्ठा करके बोला जाता है टिश्यू, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड ऑफ सेल्स। सेल इज लिविंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा, पहले तो देखिए एक सिंपल सेल है, ये एक सिंपल सेल है। जब इस तरीके की सिमिलर सेल जब आपस में मिलते हैं, सिमिलर सेल का जब ग्रुप बनता है आपस में, तो इन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को बोला जाता है, इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? टिश्यू। इस ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू। अब जब इस तरीके के ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन। नाउ इन टर्न जब काफ़ी सारे ऑर्गन साथ में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि एक सेल, सिमिलर तरीके के सेल का जब ग्रुप बनता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन, एंड देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेन ये ऑर्गन सिस्टम बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ, ये ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं? पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनती है। तो ये जो बॉडी बनी है ऑर्गेनिज्म की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी बनना। इसलिए इस सिंगल सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, क्योंकि ये स्पेसिफाइड रहती है पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इससे बोला जाता है, जो कि स्ट्रक्चर देता है पूरे ऑर्गन सिस्टम को, इसलिए इस सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, and the next topic, that is part of the cell, we will start in the next class.
Thank you. Till then, you have to read the chapter we have covered till now by yourself at your home. Thank you.